हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 4 एनर्जी का लेसन नंबर 16 इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. Today we are going to study about electric current. So let's start this topic. All electrical appliances, gadgets like a bulb or a heater coil are based on the movement of charges, as we know that flowing water constitute water current in reverse. Similarly, electric charge flowing through a conductor or a metallic wire constitutes electric current, that is the quantity of charge flowing per unit time. Thus, electric current is the charge flowing through any cross section of the conductor in a unit time. जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या गैजेट्स होते हैं जैसे कि बल्ब या फिर हीटर का कॉइल, वो सब किस पे बेस्ड होते हैं? मूवमेंट्स ऑफ चार्ज पे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्लोइंग वाटर होता है वो क्या कंस्टिट्यूट करता है? वाटर करंट रिवर्स सब में। उसी तरह जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो करता है कंडक्टर से और मेटेलिक वायर से, वो क्या कंस्टिट्यूट करता है? इलेक्ट्रिक करंट, जो कि किसका क्वांटिटी होता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम का। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो चार्ज फ्लोइंग है और वो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कर सकता है कंडक्टर का एक यूनिट टाइम है, दैट इज आई इक्वल टू चार्ज पर टाइम। आई हमारा करंट हो गया और चार्ज और टाइम। इससे हम लोग एक न्यू इक्वेशन निकालें। इसमें जो Q है वो चार्ज इन कॉलम है और flowing through the conductor in t seconds. If one column of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the current flowing it will be 1 ampere. तो जो Q है वो हमारा चार्ज हो गया कॉलम में। हम लोग जानते हैं कि हम लोग कॉलम में इस चीज को डिनोट करते हैं चार्ज को, और ये किससे फ्लो कर रहा है? कंडक्टर टी सेकेंड्स में। अगर वन कॉलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड टाइम में, तो उसका जो करंट फ्लोइंग होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर। और एम्पियर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। दैट इज 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कॉलम पर 1 सेकेंड। Here, ampere is the SI unit of current given in the honor of the French scientist Andrew Marie Ampere, 1775 to 1836. However, small currents are more conventionally expressed in milliampere, symbolically represented by Ma, and microampere, symbolically represented by mu A. Current is a scalar quantity. तो जो एम्पियर है वो ऐसा यूनिट किसका है? करंट का। और ये किसके सम्मान में नाम रखा गया था? फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रू मैरी एम्पियर। जो स्मॉल करंट्स आता है वो ज्यादा कन्वेंशनल एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग उसको मिली एम्पियर में, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एम ए से। और जो माइक्रो एम्पियर है उसे हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू ए। करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। 1 ma इक्वल टू 10⁻³ a or 1 mu a equal to 10⁻⁻6 a. An ammeter is an instrument which, on connecting in series in an electrical circuit, indicates how many amperes of current is flowing in the electric circuit. एमीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और जो इंडिकेट करता है कि कितना एम्पियर करंट फ्लो हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट में। एंड दिस इज द फिगर of ammeter. Do you know all metals contain large number of free electrons, approximate 10 to the power minus 29 meter, which act as charge carriers? In a metallic conductor or wire, these free electrons move with a sufficiently high velocity of the order of 10 to the power 5 meter per second in all possible directions between the atoms of the conductor or wire, and even then here is not a net flow of electrons. But when battery is connected across the ends of the conductor or wire, the electrons drift in one direction. That is, current flows along the wire in one direction from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery along the wire with a very small velocity, approximate 10 to the power minus 4 meter per second, called drift velocity of the electrons. जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, जो कि एक चार्ज कैरियर्स के रूप में बिहेव करते हैं। जो मेटेलिक कंडक्टर या फिर जो वायर होता है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो सफिशिएंटली हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। उनका जो मूव करने का ऑर्डर होता है वो 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड है। और ये
सारे पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं एटम्स के, कंडक्टर का जो भी एटम या वायर उसके बीच में है, वहां पे कोई भी मतलब कि क्या होता है कि जितने भी नेट फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो एक सभी मूव करते रहते हैं। लेकिन जब बैटरी कनेक्ट होता है कंडक्टर और वायर से तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हो जाता है वन डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में वो हो जाता है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लोज होता है वायर के थ्रू। अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है से अगर वो फ्लो हो रहा है तो उसका जो फ्लोइंग होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल टू बैक ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो जाएगा। और जो वायर उसका स्मॉल वेलोसिटी हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। We have already read that matter is made up of protons, electrons, and neutrons. Protons carry positive charge, electrons carry negative charge, and neutrons do not carry any charge. An atom is electrically neutral, but if a body carries excess of protons than the electrons, the body gets positively charged. If the body has excess of electrons than the protons, body gets negatively charged. If a charged body is connected to an uncharged body through a metallic wire, the positive charge flows from higher potential to lower potential, while negative charge flows from lower potential to higher potential. The charge flows till both the bodies are at the same potential. To pass the charge continuously from one body to another body through a wire, a constant potential difference has to be maintained between the two ends of a wire in a circuit. This is done by an external source of energy, which forces the charge carriers electrons already present in the wire to move in a different direction, that is from lower potential region to higher potential region. The external source of energy is called a cell. A cell is a device in which chemical energy is converted into electrical energy. In the cell, negatively charged plate repels the electrons, which causes the electrons to move along the wire. Hence, the electrons flow from negatively charged plate through the wire to positively charged plate of the cell. This is known as the electron current. Conventionally, the direction of the current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons, that is from the positive to the negative terminal. हम लोगों ने पहले से ही रीड कर रखा है कि जो मैटर है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है अगर जो बॉडी एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स को कैरी करे या इलेक्ट्रॉन से। अगर जो बॉडी क्या है जो पॉजिटिवली चार्ज हो, अगर जो बॉडी इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से ज्यादा, तो जो बॉडी वो निगेटिवली चार्ज होगा। अगर एक बॉडी जिसमें वो कनेक्टेड हो अनचार्ज बॉडी से थ्रू अ मेटेलिक वायर, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर यही जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज से कनेक्ट रहेगा तो ये बॉडी फ्लो कर इसका जो पोटेंशियल है वो कैसे जाएगा, नेगेटिवली चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। चार्ज फ्लोज बोथ द बॉडीज एट द सेम पोटेंशियल। जो हमारा बॉडी है उसका जो पोटेंशियल है तो वो दोनों तरफ से सेम पोटेंशियल से ही फ्लो होगा चार्ज। तो pass the charge continuously from one body to another body through a wire, a constant potential difference has to be maintained. अगर किसी भी बॉडी में चार्ज कंटिन्यूसली पास हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो उसमें जो वायर है उसको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होगी, जिसमें जो दोनों एंड है जो सर्किट से कनेक्टेड है वायर का। ये कैसे डन किया जाएगा, तो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के द्वारा, जिसमें जो फोर्स है वो कैरियर्स बनेगा इलेक्ट्रॉन्स का जिसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है वायर में। इसमें जो डिफरेंट डायरेक्शन में ये मूव करेगा, जैसे लोअर पोटेंशियल रीजन से ये हायर पोटेंशियल रीजन में मूव करेगा। जो एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी का, इसे हम लोग एक सेल बोलेंगे। और सेल का यहाँ पे एक डेफिनेशन है, अ सेल इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो केमिकल एनर्जी है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेल नेगेटिवली चार्ज प्लेट को रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन से जो कि मूव करता है वायर में। और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है निगेटिवली चार्ज प्लेट से, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रहता है सेल का, और इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, इलेक्ट्रॉन करंट। कन्वेंशनली जो डायरेक्शन है करंट का वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन में, दैट इज पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। एंड here is the figure showing flow of electron current which द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। अब हम लोग बोलेंगे कि बैटरी क्या है,
तो जिसमें सेल का कॉम्बिनेशन हो उसे बैटरी बोलते हैं. एंड हियर इज आल्सो डेफिनेशन ऑफ बैटरी. द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड a battery. One of the earliest and simplest devices capable of producing steady current was invented by Alessandro Volta 1745 to 1827, named voltaic cell. Batteries are a good source of direct current. Direct current DC means the electric current is flowing in one direction only in a circuit. To measure the current in a circuit, ammeter is used. तो एक अर्लीस्ट और सिंपलेस्ट डिवाइस है जो कि कैपेबल है स्टेडी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए. ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? एलेजेंड्रो वोल्टा. और उन्होंने उनका नाम अपने जो उन्होंने जो डिवाइस का डिस्कवर किया था उसका नाम उन्होंने वोल्टाइक सेल रखा. बैटरी एक गुड सोर्स है डायरेक्ट करंट का. डायरेक्ट करंट मीन्स क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वन डायरेक्शन में सर्किट में. और हम लोग करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में एमीमीटर का यूज करते हैं. कॉशन: never connect the two ends of a battery with conducting wire without making the electrons to pass through some load like a light bulb, which slows the flow of current. If the current electron flows is increased too much, the conductor may become hot and the bulb and the battery may be damaged. तो आपको यहाँ पे एक सावधानी रखना है कि कभी भी बैटरी के दोनों एंड को एक कनेक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए जबकि जब तक जो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन जिसमें पास हो रहा है उसको हम लोग उसमें कुछ लोड ना डाल दे, जैसे कि एक बल्ब को लाइट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा करें जिससे उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो स्लोज डाउन हो जाए उसका प्रोसेस. अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम लोग अगर उससे कनेक्ट कर देंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो कंडक्टर है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा और बल्ब और बैटरी दोनों को डैमेज पहुंचेगा. Conductors and insulators. All materials can be divided into two categories on the basis of movement of charges through the impulse: conductors and insulators. Conductors are the materials which allow the electric current to flow through them quite freely. Example: metals like silver, copper, aluminium. Insulators are the materials which do not allow electricity to flow through them freely. Example: rubber, glass, bakelite, etc. तो जितने भी मटेरियल्स हैं उन्हें हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. बेसिस क्या है उसका डिवाइड करने का? मूवमेंट ऑफ चार्जेस. उसमें जो चार्ज है वो कैसे मूवमेंट कर रहा है. और वो जो दो कैटेगरी है वो है कंडक्टर और इंसुलेटर. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है. कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम क्वाइट फ्रीली. कंडक्टर कुछ ऐसा मटेरियल है जिसमें वो अपने इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर फ्लो करने देता है. एग्जांपल में हो गया मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम. और इंसुलेटर वैसा मटेरियल है जिसमें वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने नहीं देता है फ्रीली. एग्जांपल के लिए रबर, ग्लास, बेकलाइट. Resistors. The electrical resistance is the tendency to resist the flow of electric current. A wire having a desired resistance for use in an electric circuit is called a resistor. It is represented by the symbol. Resistance can be both either desirable or undesirable in a conductor or circuit. In a conductor, to transmit electricity from one place to another place, the resistance is undesirable. Resistance in a conductor causes sparks of electrical energy to turn into heat. So some electrical energy is lost along the path. On the other hand, it is the resistance which allows us to use electricity for light and heat. Example: lights that we receive from electric bulb and heat generated through electric heaters. इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जिसके पास टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को वो रेसिस्ट करे उसके फ्लो को. वायर के पास एक डिजायर्ड रेसिस्टेंस होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसे हम लोग रेसिस्टर बोलते हैं. और इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो ये एक सिंबल यहाँ पे रेसिस्टर का दिया हुआ है. इसका मतलब वो रेसिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंबल. रेसिस्टेंस आइदर डिजायरेबल होता है या फिर अनडिजायरेबल होता है किसी भी कंडक्टर या सर्किट में. कंडक्टर में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस से अनदर प्लेस में. तो जो रेसिस्टेंस होता है उसमें अनडिजायरेबल होता है. रेसिस्टेंस कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टर्न करता है हीट में, और कुछ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाते हैं अपने पास में. दूसरी तरफ जो रेसिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अलाउ करता है लाइट के लिए, हीट के लिए. एग्जांपल के लिए जब हम लोग लाइट रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब से, और हीट जो जनरेट होता है इलेक्ट्रिक हीटर से. Activity 16.3. During your laboratory classes at your study center, you can find the relation between the current flowing through a wire and the potential difference applied across it with the help of your tutor and your friends. Take a device a voltmeter range 0 to minus 1.5 volt and ammeter range 0 to minus 1 ampere, a standard fixed resistance coil 1 ohm, rheostat 0 to minus 1 ohm, connecting wires and a plug key.
तो जब आप लेबोरेटरी क्लासेस में अपने स्टडी सेंटर में होंगे तो आप लोग एक रिलेशन करंट में थ्रू वायर के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में स्थापित कर सकते हो। इसमें जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो उसे आप लोग कैसे करोगे, ट्यूटर और फ्रेंड्स की हेल्प से। आपको इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, ड्राई सेल, एक वोल्ट मीटर जिसका रेंज होना चाहिए 0 से 1.5 वोल्ट, और एक एमीमीटर जिसका रेंज 0 to -1 एम्पियर, एक स्टैंडर्ड फिक्स रेजिस्टेंस कॉइल चाहिए जिसका वैल्यू 1 ओम तक होना चाहिए, और रियोस्टेट जिसका हम लोग को वो चाहिए 0 to 1 ओम, और एक कनेक्टिंग वायर चाहिए और एक प्लग की चाहिए। So perform this activity. Connect the fixed resistor R, ammeter A, dry cell D, plug key K, and rheostat RH in series end to end, and voltmeter P is parallel to R as shown in figure 16.6. आपको एक resistor, ammeter, dry cell, plug key और rheostat को एक सीरीज में end to end और voltmeter में parallel से इसको कनेक्ट करना है, जैसे कि फिगर 16.6 के ए में शो किया गया है। When the K is open, meaning that the circuit is disconnected. Check that the readings in ammeter and voltmeter are zero. जबकि ओपन होगा इसका मतलब क्या है कि जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसमें आपको रीडिंग चेक करना है एमीमीटर और वोल्टमीटर का, जो कि जीरो होगा। इंसर्ट द प्लग in the key and move the sliding contact of the rheostat so there that there is some small reading in the ammeter and voltmeter. Record these readings. अब आपको क्या करना है, प्लग को की से कनेक्ट करना है, इसमें जो स्लाइडिंग कांटेक्ट होगा रियोस्टेट से उसको उसमें कनेक्ट करना है। इसमें आपको स्मॉल रीडिंग आएगा एमीटर और वोल्टमीटर, उसको आपको रिकॉर्ड करना है इसकी रीडिंग को। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, रिकॉर्ड एमीटर एंड वोल्टमीटर रीडिंग्स अगेन। इसके बाद आपको वैल्यू ऑफ करंट को बढ़ाना होगा रियोस्टेट की हेल्प से। इसके बाद फिर से आपको एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स को रीड करना होगा। After changing the readings 4 to 5 times, record the corresponding values of current and voltage from ammeter and voltmeter. आपको इसे बार बार इस रीडिंग को चेंज करके उसे रिकॉर्ड करना होगा उसके वैल्यू को, और उसके बाद एमीटर और वोल्टमीटर को देखना होगा। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर रीडिंग्स। एक ग्राफ आपको प्लॉट करना होगा जिसमें एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स को आपको दिखाना होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट first on increasing ammeter reading, voltmeter reading increases in the same proportion. Second, the voltage current graph is a straight line as shown in figure 16.6b. तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जब आपने इंक्रीज किया एमीमीटर रीडिंग को तो जिसका वोल्टमीटर रीडिंग है वो भी इंक्रीज हो गया सेम प्रोपोर्शन में, और जो वोल्टेज करंट ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा जैसा कि 16.6 फिगर में शो किया गया है। What do you conclude? We conclude that the current flowing through a wire is directly proportional to the potential difference applied across its end. हम लोग को इसे एक कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन क्या है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस जो इस वायर पे अप्लाई किया जा रहा है। That is V is directly proportional to I or V equal to Ri. Here R is a constant of proportionality and is called the resistance of the given metallic wire. This observation was first made by जॉर्ज साइमन ओम एंड इज नोन एज ओम्स लॉ। तो आर यहाँ पे एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, और इसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे जो कि एक गिवन मेटालिक वायर का है। और ये जो ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा नोटिस किया गया था, और इसे हम लोग आज ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor provided temperature of the conductor remains the same. तो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के जो उस वायर पे अप्लाई हो रहा है, और जो कंडक्टर प्रोवाइड कर रहा है टेम्परेचर उसका जो कंडक्टर में वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। Now organize a brainstorming session with your tutor and other learners on following points. The law can be applied only to connecting wires, and that too when its temperature and other physical conditions remain unchanged. If the temperature of the conductor increases, its resistance also increases. अब आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना होगा अपने ट्यूटर और अपने जो आपके साथ में पढ़ते लर्नर्स उनके साथ। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए उसके ऊपर जो लॉ है वो क्या अप्लाई कर रहा है कि कनेक्टिंग जो वायर्स है जब वो टेम्परेचर उसका और जो अदर फिजिकल कंडीशन होगा जब रिमेन अनचेंज होगा, तो अगर जो इसका टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज होगा तो उसका जो रेसिस्टेंस है क्या वो भी इंक्रीज होगा। आर दैट इज रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर। इट कैन बी इजीली शोन दैट रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन its length, longer the wire, more the resistance. Its thickness, thicker the wire, lesser the resistance. Its width, more the width, lesser the resistance. जो R है रेसिस्टेंस ऑफ वायर वो कांस्टेंट है किसी भी गिवन वायर के लिए, और ये कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं लेंथ के ऊपर। जो वायर का अगर जो वायर लॉन्ग रहेगा तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा रहेगा, वायर थिक रहेगा तो रेसिस्टेंस लेस रहेगा।
अगर वायर का जो विड्थ है वो ज्यादा होगा तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो भी कम होगा. Therefore, the resistance of the wire is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross sectional area. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के. The nature of material copper wire has lesser resistance than iron wire of same length and thickness. The resistance of a wire can never be negative. तो जो नेचुरल मटेरियल का है जैसे कॉपर वायर इसका लेसर रेजिस्टेंस होता है आयरन वायर के मुकाबले और इसका जो सेम लेंथ और थिकनेस होने के बाद जो रेजिस्टेंस है वायर का वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा. Resistance is a scalar quantity and its SI unit is ohm denoted by the symbol O or omega. 1 ohm is the resistance of a wire across when one potential difference is applied. 1 ampere current flows through the wire. रेसिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट ओम है जिसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं. 1 ओम रेसिस्टेंस है वायर का और जो 1 पोटेंशियल है उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है जिस पे हम लोग वायर पे अप्लाई कर रहे हैं. 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है वायर से. 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. हाई रेसिस्टेंस आर मेजर इन किलो ओम एंड मेगा ओम. हम लोग को जो हाई रेसिस्टेंस को मेजर करना होता है तो हम लोग किलो ओम और किलो मेगा ओम का यूज करते हैं. 1 किलो ओम इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ओम एंड 1 मेगा ओम इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ओम. Combination of resistors. In an electric circuit, resistors can be connected into different ways. Series combination, two or more resistors can be combined into and consecutively. Parallel combinations, two or more resistors can be connected between the same 2 points. जो इलेक्ट्रिक सर्किट है रेसिस्टर उसे हम लोग दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं एंड टू एंड और पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें हम लोग दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं सेम पॉइंट से. सीरीज कॉम्बिनेशन इन अ सर्किट figure 16.7 three resistors are connected in series with a cell and an ammeter. You will note that due to one path the same current data I will flow through all of them. तो जो सर्किट है 16.7 में एक फिगर दिया है उसमें 3 रेसिस्टर कनेक्ट है सीरीज में एक सेल और एमीमीटर की हेल्प से. आप नोट करोगे कि जो एक पाथ है उसमें सेम करंट आई फ्लो हो रहा है इसके पूरे सर्किट में. Let the potential difference between the ends of the resistors R1, R2, R3 and respectively V1, V2 and V3. By Ohm's law, potential difference across each resistor V1 equal to IR1, V2 equal to IR2 and V3 equal to IR3. And now if the potential difference between P and Q be V and then V equal to V1 plus V2 plus V3, substituting the values of the V1, V2, V3, IR1, IR2 or IR3 और आई R1 प्लस R2 प्लस R3. ये इक्वेशन हमारा 16.1 हो गया. लेट टोटल और equivalent resistance between P and Q are then total potential difference V equal to IRS and it is our next equation which is 16.2. Comparing equation 16.1 and 16.2 we get IRS equal to I R1 plus R2 plus R3 or RS equal to R1 plus R2 plus R3. That is the equivalent resistance of three resistors connected in series is equal to the sum of their individual resistance. तो हम लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों हम लोग का एंड रेसिस्टेंस का वो R1, R2 और R3 है और रिस्पेक्टिवली V1, V2, V3 है वोल्टेज का. हम लोग ओम्स लॉ इस पे अप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. तो हम लोग का जितने भी रेसिस्टर्स हैं उनके लिए गिवन वैल्यू दिया गया. अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस P और Q का निकालेंगे तो वो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा. इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करने पे हम लोग को एक इक्वेशन हम लोग को मिलेगा 16.1 जो कि है I R1 प्लस R2 प्लस R3. और जब हम इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे P और Q का R के बीच में तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इक्वल टू IRS होगा. ये हमारा इक्वेशन 16.2 होगा. अब जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे दोनों वैल्यू को तो हम लोग को IRS इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3 और RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तीनों रेजिस्टेंस का जो कनेक्ट है सीरीज में और ये इक्वल है अपने पूरे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर. पैरेलल कॉम्बिनेशन figures show the three resistors connected in parallel with a cell and an ammeter. The potential difference between points P and Q will be the same across each resistor, but the current flows from P to
Q will be equal to the sum of the separate currents passing through each branch of a given resistance. If I1, I2 and I3 respectively represent the current passing through the branches having the resistors R1, R2 and RC, then the total current I in the main circuit will be. जो फिगर है वो थ्री रेसिस्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल में एक सेल और एमीमीटर के साथ। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉइंट्स पी एंड क्यू के बीच में वो सेम होगा पूरे रेसिस्टर में, लेकिन जिसका करंट फ्लो हो रहा है पी से क्यू वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द सेपरेट करंट जो कि पास हो रहा है हर एक ब्रांच में गिवन रेसिस्टेंस के। I1, I2 और I3 रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है करंट पास जो कि ब्रांच से हो रहा है, और इसका जो रेसिस्टेंस है वो R1, R2, R3 है। तो इसका जो टोटल करंट होगा मेन सर्किट का वो क्या होगा, लेट्स find out. I equal to I1, I2 plus I3 ये हमारा 16.3 इक्वेशन है। If B is the potential difference across each of the resistors, then according to Ohm's law, तो हम लोग जो भी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर रेसिस्टर का निकाल रहे हैं वो सब ओम्स लॉ पे बेस्ड है। I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3 एंड इट इज द इक्वेशन 16.4. If Rp is the equivalent resistance of the resistors connected in parallel having the same potential difference V, then I equal to V upon Rp. Using equation 16.4 and 16.5, the equation 16.3 will be V upon Rp equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. That is 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. That is the sum of the reciprocals of the separate resistance is equal to the reciprocal of equivalent or total resultant resistor Rp. अगर हम लोग पैरेलल रेसिस्टर का देखने जाए तो उसका जो भी हम लोग निकालेंगे वो ओम्स लॉ पे निकालेंगे एंड हियर आर द सम इक्वेशंस व्हिच इज 16.3, 16.4 एंड 16.5. इट शोज दैट कि जो सम है रेसिप्रोकल्स का सेपरेट रेसिस्टेंस का वो इक्वल होगा रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट और टोटल और रिजल्टेंट रेसिस्टेंट. रिमेंबर, normally, all the appliances in our household circuits are connected in parallel, but the chain of small bulbs that we use for decoration on Deepavali has the bulbs connected in series. तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हमारे घर का हाउस होल्ड सर्किट्स में अप्लायंसेस कनेक्ट होता है वो पैरेलल होता है, लेकिन जो स्मॉल बल्ब का चेन हम लोग डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं दीपावली पे वो सीरीज में कनेक्टेड होता है. As we add resistance in series, the circuit resistance increases, but when we connect resistance in parallel, the total resistance is smaller than the smallest of the resistance involved. जैसे ही हम लोग सीरीज में रेसिस्टेंस को ऐड करेंगे तो सर्किट रेसिस्टेंस का वो इंक्रीज होगा, लेकिन जब हम लोग कनेक्ट करेंगे रेसिस्टेंस को पैरेलल में तो जो टोटल रेसिस्टेंस है उस सीरीज उस सर्किट का वो स्मॉल हो जाएगा जो कि उस रेसिस्टेंस में इन्वॉल्व है पहले से. डू यू नो, multimeter is basically an aviometer, that is ammeter, voltmeter and ohmmeter, which is used for measurement of current, voltage and resistance. मल्टीमीटर एक एवियोमीटर है जिसमें एमीमीटर, वोल्टमीटर और ओममीटर तीनों रहता है, जिसे हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को. एग्जांपल 16.3. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for fifth part of an hour. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. एक करंट हम लोग ड्रॉ किए 0.5 एम्पियर का एक फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब से फिफ्थ आर पार्ट, एक घंटे का फिफ्थ पार्ट, तो इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि उस सर्किट से फ्लो हुआ. तो हमारा आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, टाइम दिया 1/5 ऑफ एन आवर एंड जिसको हम लोग चेंज कर दिया 1/5 into 16 इक्वल टू 12 मिनट. Q इक्वल टू IT बिकॉज इट इज द फॉर्मूला of this equation. So 12 into 60 second equal to 720 second, and we have I equal to 0.5A and 12 into 60 equal to 720 second. और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 360C और 360 कॉलम. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. तो यहाँ पे ABC फिगर दिया हुआ है 16.9 में, तो इसका जो रेसिस्टेंस है कॉम्बिनेशन का उसके रेसिस्टर का आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को फाइंड करना है. हियर और रेसिस्टर्स ए में क्या कि जितने भी रेसिस्टर्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है तो सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो बेसिकली हम लोग को अपना आंसर मिल जाएगा. और बी में क्या है कि हम लोग का जो दो सीरीज कनेक्टेड है थ्री रेसिस्टर का वो एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि पहले जो R1 है उसे हम लोग को प्लस कर देंगे और R2 का भी प्लस कर देंगे. उसके बाद
इक्वल टू है R1 इंटू R2 और R अपॉन R1 प्लस R2। तो ऊपर में हम लोग 6 इंटू 6 36 ओम और नीचे में हम लोग क्या करें 6 प्लस 6 12। अब 12 को हम लोग 36 से डिवाइड करना तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो है क्या 3 ओम। Here we have three parallel combinations of two resistors each connected in series। तो जो सी नंबर में जो 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन है टू रेसिस्टर का और वो कनेक्ट किसमें है सीरीज में। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है R इक्वल टू R1 इंटू R2 और अपॉन R1 प्लस R2 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 ओम। तो R इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल टू 1 ओम। 2 इंटू 1 2 हो गया 2 प्लस 2 4 और हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 ओम होगा। R इक्वल टू 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3 9 अपॉन 6 इक्वल टू 3.2। जब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो 1.5 ओम आया। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 इक्वल टू 3 ओम। So based on your understanding, try to solve in text question 6.2. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।